राहुल गांधी के खिलाफ सत्ता पक्ष विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं भेजेगा, यह बात बिल्कुल क्लियर है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा है कि राहुल गांधी को वो समझाएं, नहीं तो हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा कोई कदम फिलहाल उठाने नहीं जा रही है। हमारा मुद्दा यह है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला, क्यों राहुल नियम से हटकर अपनी बात रखते हैं। इस बुलेटिन में हम आपको यह नहीं बताने वाले हैं कि राहुल ने ऐसा क्यों बोला, हम आज ये बताने वाले हैं कि संसद के अंदर और संसद के बाहर कैसे नेता नियमों का उल्लंघन करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जबकि होनी चाहिए। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। So you are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. You're telling us energy and finance being weaponized, and then you're having it done to you. You're having it done to our farmers. You're having it done to our youngsters. You're handing our data over. How can you even make these statements? How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourselves? Are you not ashamed of giving? You're saying shameful. You're saying nonsense. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. Nonsense. जो nonsense आपने use किया वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा. But ashamed is not an abuse. नहीं. There's nothing. In saying, are you not ashamed? There is no abuse. I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is the central part of the budget. वो भी इस हाउस के Why, sir? कोई स्वरूप नहीं जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे संभाल देंगे? Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair, to Epstein. Mr. He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. Because the minister said that I should authenticate. Now I have the papers to authenticate. I have it here. 1 second, please. I have the paper. Now I said to you, 1 second, I have the documents here. I said to you that I will authenticate, and I will also I will authenticate right now, and I will put it there on the table. But you're not allowing me to do it. Anyway, I understand that. राहुल ने ये बात कल सदन के अंदर बोली जो नहीं बोलनी चाहिए थी। इसके बाद किरण रिजिजू ने जो कहा वो सुनिए। We are going to file a notice, privilege notice,
against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. So I have, on the floor of the House, requested Sri Rahul Gandhi ji to make necessary authentication of those points he has made. Secondly, he took the name of the senior minister, Hardeep Singh Puri. He has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. लेकिन आज किरेन रिजिजू ने जो कहा वो भी सुनिए। ऐसा है, वो कांग्रेस के कई एमपीज को मैंने बोला है कि आप लोग राहुल गांधी जी को थोड़ा समझाइए कि रूल से बाहर बोलने पर प्रिविलेज नोटिस होते हैं और आप कोई भी रूल ब्रेक करेंगे तो आपके खिलाफ कोई भी नोटिस अलग अलग नियम में उठाया जा सकता है। तो अभी भी मैंने कुछ कांग्रेस सांसदों को बताया है कि आप लोग राहुल गांधी जी को समझा दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद नियम नहीं पता होंगे। हमारी फूड सिक्योरिटी। वहीं राहुल गांधी अब भी अपने बयान पर अड़िग हैं। अपने नए बयान में उन्होंने कहा, मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। इसके साथ फैसला लिया गया कि राहुल गांधी के भाषण के वो हिस्से हटाए जाएंगे जिन्हें वो प्रमाणित नहीं कर पाए। साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि हरदीप पुरी संसद में राहुल के आरोपों का जवाब देंगे। सब मामला शांत होता दिखा, तभी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में खड़े होकर राहुल गांधी पर देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने और संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन, USAID और फोर्ड फाउंडेशन जैसी संगठनों के संपर्क में रहते हैं। इस पर हंगामा हुआ और सदन कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। अब ये बात वो निशिकांत दुबे कह रहे हैं जिन्होंने इससे पहले सदन में क्या कहा था, वो सुनिए। छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। मुझे बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे।
है जो कि बैन कर दी है। जिन किताबों का जिक्र निशिकांत दुबे कर रहे हैं, पता नहीं इसमें से कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं और जो बोल रहे हैं वो कहां पढ़े। एक बार ये लाइन फिर से सुनिए। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नयनतारा सहगल से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके संबंध रहे जो कि बैन कर दी है। वाह निशिकांत जी, नयनतारा सहगल नेहरू की गर्लफ्रेंड थी। कहां से पढ़कर आते हैं ये लोग? इन्हीं के सहयोगी हैं ये गिरिराज सिंह। 2 दिन पहले 3-4 तस्वीरें लेकर सदन के बाहर आए थे। इसमें भी नयनतारा सहगल की ये तस्वीर थी। गिरिराज सिंह की इन तस्वीरों का भांडाफोड़ हमने कर दिया था। अब निशिकांत जी का करना बाकी है। निशिकांत जी, ये है नयनतारा सहगल। एक बार फिर इस फोटो के नीचे की लाइन कान लगाकर सुन लीजिए। 1955 में विजय लक्ष्मी पंडित यूके की राजदूत थी। जब नेहरू लंदन की आधिकारिक यात्रा पर गए थे तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए नयनतारा सहगल अपनी मां विजया लक्ष्मी पंडित के साथ मौजूद थी। विजया लक्ष्मी पंडित नेहरू की बहन थी और नयनतारा सहगल उनकी भांजी। लेकिन गिरिराज सिंह और निशिकांत दुबे को नयनतारा सहगल नेहरू की गर्लफ्रेंड दिखती हैं। मानसिक रूप से दिवालियापन का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इसलिए तो कह रहे हैं कि जिन किताबों को निशिकांत दुबे लोकसभा में उठा उठा कर दिखा रहे हैं, इसमें से एक भी किताब को पढ़ना तो दूर, अंदर का पन्ना भी कभी जिंदगी में नहीं पलटे होंगे। अगर पलटे होते तो फिर नयनतारा सहगल नेहरू की भांजी दिखती, ना कि गर्लफ्रेंड। अब सवाल उठता है कि क्या किसी ने निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की? क्या किसी बड़े नेता ने खुलकर कहा कि इन दोनों ने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई है? जवाब है नहीं। तो ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। गिरिराज सिंह एआई जनरेटेड फोटो लेकर घूमते रहते हैं। इसका पोस्टमार्टम हमने 2 दिन पहले इसी बुलेटिन में कर दिया था। इन्हीं गिरिराज सिंह ने आज राहुल के बारे में क्या कहा वो सुन लीजिए। देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भरम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। राहुल गांधी को लुच्चा, थोड़ी देर के लिए मीडिया वाले भी चकरा गए। ये क्या बोल रहे हैं? फिर भी मन नहीं माना तो एक ने सवाल फिर पूछा। जवाब सुनिए। लुच्चा जो भारत के लोग आपको पहचान चुके हैं, आप सत्ता में आने वाले नहीं, इसीलिए ऐसी गतिविधि। सर, आप नेता प्रतिपक्ष को लुच्चा बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। लुच्चा जो रहेगा उसको लुच्चा ही तो बोलूंगा। एक वीडियो आया है, सुन लिया? लुच्चा सुनकर हम भी गच्चा खा गए। अरे, नेता प्रतिपक्ष को कोई कैसे बोल सकता है? लेकिन बोल सकता है। जब सरेंडर को सलेंडर और सलेंडर बोल सकते हैं तो फिर कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा है, अंग्रेज के बाहों में सलेंडर किया। ये नेहरू ने सलेंडर कर दिया अपने आप को। अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये हम आप पर छोड़ देते हैं। गिरिराज सिंह और निशिकांत दुबे के लिए तुलसीदास की एक चौपाई है, समरथ को नहीं दोष को साई।